इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। अगर आप कंटिन्यूअसली लेबरस हैं, आप उसके फेवर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली उसको पाने की कोशिश में हैं, तो डेफिनेटली वो एक दिन आपको मिलेगा। आपको जो भी बनना है वो टॉप पे बनिएगा। Hello everyone, I'm your host Seema Choria and I bring to you another insightful episode on Great Principles. To desire is to obtain, to aspire is to achieve. To aspire to be someone is not the same as to desire to own something. Aspirations are futuristic and logic based, whereas desires are for instant gratification and stem from wants. When we aspire, we strive to make it happen. When we desire, we usually talk about it. My guest today is that one person who believes in aspiring to achieve, thus striving towards the fruition of his dreams. Please welcome Dr. Nitin Kumar Sharma, Principal cum Director, Sharda Public School, Balrampur, UP. Welcome to Great Principles, sir. It's an honor to have you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we look forward to an insightful conversation, and I'm sure my readers, viewers would going to enjoy this. So, sir, let us start where it all started. बहुत समय पहले you aspired to add value in education sector, right? And that is why you became an educator. So, how will you describe your journey of this? You know, this journey of nurturing minds. कैसे आपने शुरुआत की? What inclined you to become an educator? Actually, when I completed my masters, so I have gone for the PhD. मैंने PhD से start किया, डॉक्टरेट किया और उसके बाद 4.5 year असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। लेकिन एक बहुत सी अच्छी सी फिनोमिना है कि वी कैन चेंज इन द फाउंडेशन, नॉट इन द बिल्डिंग। इन बिल्डिंग वी जस्ट कैन चेंज द इंटीरियर, रेस्ट ऑफ यू हैव टू वेट। आप उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आई थॉट टू मूव इन द स्कूलिंग। तो वहां पर जो यंग माइंड्स हैं, तो पहले एक्चुअली कोई भी बच्चा टीचर बनना नहीं चाहता है, बोले एवरी डे द सेम बिल्डिंग, सेम स्कूल एंड सेम टेक्स्ट बुक, what we will do in the change. But every day we are encountering with the young minds, every day we are facing the new challenges with the students, and we are satisfying the curiosity of the student, curiosity of the young generation especially. So that inspired me a lot ki let's start with the foundation. So I was the youngest principal. That time I was only 26 and a half when I started my career as a principal. Wonderful. Yeah. And from there on, the journey just kept going and you kept growing. Yeah, I have completed 7 years in Gujarat, then 5 years in UP, and now this journey is going on. Yeah, every day when we are meeting to the students na, so it's regenerating the energy in us. Ki what we can do better for the society, what can we do better for this young student. This is that inspired me a lot. सर आपकी बहुत अच्छी फिलॉसफी है। वो कहते हैं ना कि किसी को शुरुआत से फाउंडेशन से सही बनाओ, किसी टूटे हुए को रिपेयर करने से वो ज्यादा बेटर होता है। It is said in English that you know it's much easier to build a child than to repair a broken man, right? Yeah. So on this philosophy, sir's entire vision of education is based. So we wish you luck, sir. We wish you that you keep on growing on this journey and you keep educating young minds, building the foundation. Thank you. So let's move ahead in our conversation, sir. सर आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन इंडियंस के लिए? ये जो जनरेशन है बहुत अलग है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। See, by adopting this next generation learning strategies, you can match the way modern learners are learning today or would prefer to learn. Actually, we are providing the technology to the student, but we are not providing how to operate and where they have to operate especially. Okay, we have given everything in their hands just to randomly use. They are using randomly. उनका कोई भी उसका एक टारगेट नहीं है कि उनको किस पर्पस से कितने टाइम और कितना टारगेट पर उनको यूज कर लेना है। उसका यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, ये हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं। हमने केवल टेक्नोलॉजी प्लान कर दिया है कि या दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, यू कैन स्टडी एट मोबाइल, यू कैन स्टडी ऑन द टैबलेट, वी आर प्रोवाइडिंग द स्मार्ट टीवीज एंड दैट ऑल। लेकिन उसको किस लेवल पर उनको यूज करना है ये कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑनलाइन स्टडी प्लान करते हैं कि हाँ कितने टाइम में बच्चों को कितना उसको फॉलो अप करना है,
कितना उसको ऑब्जर्व करना है। जब तक आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसका फॉलो अप नहीं लेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। और पेरेंट्स के साथ में सबसे बड़ा इशू ये है कि दे आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग टू देयर वर्ड, बट दे आर मॉनिटरिंग देम कि व्हाट दे आर डूइंग बिहाइंड देम on the behalf of the technology. Are they using or they misusing? And monitoring is more important for the, especially for the new. Actually, when we say the word new, तो इसका अल्टीमेट उद्देश्य ये हो जाता है, एक एम हो जाता है कि अगर न्यू है तो हमें इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, कितना इसका ध्यान रखना है, कितना इसका ध्यान नहीं रखना है। हमने लेटेस्ट मोबाइल दिया है अपने बच्चे को, लेकिन उस मोबाइल का वो यूज करेगा या मिसयूज करेगा, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको एक वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग एक कंपटीशन के उसमें आकर वो सोसाइटी के कंपटीशन में एक स्टैंडर्ड सिंबल में या स्टेटस सिंबल में करें, तो वो प्रोवाइड तो कर रहे हैं कि नहीं, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माय चाइल्ड इज यूजिंग, ठीक है, लेकिन उसके सामने वो उसका यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, ये हमें यंग जनरेशन का मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली सर, वेरी वेल सेड सर। और इसके साथ साथ में शायद एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम मिस कर रहे हैं, हम बहुत वेस्टर्न की तरफ भागते जा रहे हैं। वी आर रनिंग अवे विद आवर कल्चर, आवर वैल्यूज। शायद वो लर्निंग में कहीं मिस आउट हो रहा है। एक्चुअली जब हम स्टूडेंट थे, तो अगर हमें जो प्रिंसिपल का या टीचर्स का जो फियर होता था, जो एक रेस्पेक्ट होता था, वो अब कहीं ना कहीं पर खत्म हो गया है। उसके पीछे लॉजिक भी है, उसके पीछे रीजन भी है। एक्चुअली व्हाट द पेरेंट्स से, वी आर पेइंग, पेमेंट इज फॉर व्हाट? You are not paying for the education, you are paying for the system, you are paying for the facilities. पहले के टाइम में वो गुरु दक्षिणा होती थी, अब वो दक्षिणा नहीं है, अब तो we are paying you that you are doing। तो वो जो, इसलिए वो कहीं ना कहीं पे वो रेस्पेक्ट कहीं पर खत्म हो गया है। अभी पेरेंट्स को एक थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि जब वो स्टूडेंट थे तब वो किस कल्चर में थे, आज हम वो कल्चर भूलते जा रहे हैं। Absolutely, sir. To my dear parents, please respect the teachers, especially when you're talking to your ward. Tell them the same things that you used to do. जब हम छोटे थे, हम कैसे अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट करते थे, आज सही सर ने एकदम सही बोला है, क्योंकि वो शुरुआत पेरेंट्स से ही होती है। जब पेरेंट्स हमें वैसा ट्रीटमेंट देते तो अल्टीमेटली बच्चे भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं। So we all need to awake here and guide our children that Guru is ultimate Guru and you have to respect them. You have to value them. Wonderful, sir. Very well said. All right, so let us begin to the next question of ours now, sir. जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है या फिर जब हमें कोई अवार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो हम किसी भी एज ग्रुप में हो, हमें अच्छा लगता है एंड ये हमें बहुत पुश करता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में और हम उसे करते रहें। तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर, एक अप्रिसिएशन that makes your day and you smile better and bigger, ऐसा कौन सा वो पार्ट है या वो अवार्ड है? एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिजल्ट, जो आपने पूरे साल मेहनत की है और उस मेहनत के सामने आपको कितना अच्छा आउटपुट मिला है, और वहां पर एक पेरेंट बोल के जाए कि सर दैट इज ड्यू टू यू, दैट इज द बेस्ट अप्रिसिएशन, एंड द मैनेजमेंट और द सोसाइटी रिकॉग्नाइज यू कि नहीं, दिस ओनली यू कैन डिड दिस, और सर ये आप ही की वजह से हुआ है, वो बेस्ट अप्रिसिएशन होता है। उसके सामने किसी भी अवार्ड की या किसी भी एक कहना चाहिए फिजिकल थिंग की जरूरत नहीं होती है। जब आपके स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उसके अंदर चेंजेस मिल रहे होते हैं, अगर आपने किसी एक स्टूडेंट को नो किया है एक दिन और नेक्स्ट डे आप अगर उसको वापस मॉनिटर करते हैं और उसके अंदर वो चेंजेस मिलता है, दैट इज द बेस्ट अप्रिसिएशन व्हिच आई गेट एवरीवेयर। एब्सोल्युटली सर, आई थिंक ये हर एजुकेटर का यही ड्रीम होता है कि जो हम दिन रात जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए, उनका भविष्य अच्छा हो जाए, हम उनकी लाइफ शेप कर पाते हैं। एंड बेस्ट थिंग इज व्हेन पेरेंट्स आल्सो रिकॉग्नाइज दैट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द स्कूल, बिकॉज ऑफ द टीचर्स, माय चाइल्ड इज व्हाट ही इज टुडे। एंड हमारे प्रिंसिपल्स हमेशा बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जो बस कंटिन्यू काम करते रहते हैं। प्रिंसिपल, अगेन आई विल से द वर्ड फाउंडेशन। प्रिंसिपल हर जगह पर फाउंडेशन है, जो कहीं पर दिखाई नहीं देगा, बट एवरीथिंग इज स्टैंड ऑन द फाउंडेशन। वेरी वेल सेड सर। या और जब आपके बच्चों का जो रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट एक्चुअली एक परसेंटेज बेस्ड नहीं होता है, मार्क्स बेस्ड नहीं होता है। आपने अपने स्टूडेंट को कितना मोल्ड कर पाए, कितना चेंजेस कर पाए, और वो एक अच्छे सिटीजन की तरफ, एक अच्छे सोसाइटी के एक पर्सन की तरफ बढ़ता है, तब आपको लगता है कि नहीं, वट एवर यू हैड डन टिल टुडे एट दिस इज करेक्ट एक्चुअली। और मैं कई बार पेरेंट्स से बोलता भी हूं कि एक बच्चे के ऊपर 3 फैमिली डिपेंड करती हैं। अगर आप एक बच्चे को सही डायरेक्शन में ले आते हैं, एक रास्ते पर ले आते हैं, और उसको एक
एक अच्छा सिटीजन बना पाते तो उसके ऊपर 3 फैमिली डिपेंड करती हैं, वो तीनों फैमिली की लाइफ और फ्यूचर दोनों इंप्रूव हो जाता है, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। Absolutely, sir. I totally agree with you. And it is not the 3 families, or it is also the entire society and the nation. Because, Absolutely. and that is why, you know, the government is constantly approaching schools, constantly making policies at school level so that the change can happen. When we see stains on the wall, when we see garbage thrown off, we all say manners nahi hai. So ये manners, ये foundation हमें नीचे शुरुआत से लाना पड़ेगा. बच्चों को starting से सिखाना पड़ेगा और तभी हम एक better citizen form कर पाएंगे. So जब कई बार होता है कि हम बच्चों के साथ में एक आइडेंटिफिकेशन जुड़ा होता है, जब वो अकेले होते हैं तो उनके साथ जुड़ता है कि आप किसके बच्चे हैं, आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। जब आप सोसाइटी में होते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि कौन से स्कूल से हैं, कहां से पढ़े हैं, ठीक है, व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल, इज दिस योर स्कूलिंग। सो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द स्कूल। नो डाउट द फर्स्ट टीचर इज योर मॉम, योर मदर, बट everything is depend upon the institution also, how they are nurturing their child. Absolutely, sir. आखिरकार बच्चा अपने लाइफ के बहुत ज्यादा टाइम स्कूल्स में बिताता है अपने फॉर्मेटिव इयर्स के. सो स्कूल हैज अ मेजर रोल टू प्ले एंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे टीचर्स की बच्चों को शेप करने में, एंड दे ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट. सो वी एज पेरेंट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ cooperating, a collaborative partnership between school and parents, and that is what will result in a successful student. Absolutely. So going ahead, sir. So, sir, every profession has their own special club or a league where they meet, discuss. So we all have like association of principals, association of mentors to guide us, motivate us. So name an educationist you look upon for your inspiration, advice, and support in tough times. Yeah, my best teacher is my principal, sir. Mr. R.P. Sharma, sir, actually, he has completely devoted his life for the students only. He was staying in the school, and I would like to share my experience. R.P. Sharma, sir, used to do the coding of the answer sheets. एक आंसर शीट की कोडिंग करते थे पेपर करेक्शन होने से पहले हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशंस में, उसमें उस कोडिंग को उनके और उनके प्यून के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। वो इतना ट्रांसपेरेंसी रखते थे रिजल्ट के अंदर कि nobody can challenge even, neither their teachers or not their students or parents. वो हमेशा एक इंस्पायरिंग रहे हैं और इतना डिवोटेड थे, you will not believe, this is really unbelievable today I will say. अगर आज किसी पेरेंट से बात करी जाए कि ऐसे प्रिंसिपल हो सकते हैं, शायद कोई बिलीव भी ना करे। वो रात को इस विंटर्स में, जब हमारे टाइम में क्या होता था कि जनवरी के बाद स्टूडेंट्स आना स्कूल में बंद कर देते थे, तो प्रिंसिपल सर रोज एक टारगेट रखते थे 12th के बच्चों के यहाँ पर, वो रात को 10 बजे जिसके पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में हैं वो उसको उस टाइम में जाकर मिलते थे। अगर मेरे एक रिलेटिव थे, वो रात को इंडस्ट्री में उनका 4 to 12 का शिफ्ट होता था, वो रात को 11 बजे शुगर इंडस्ट्री में मिलने के लिए गए कि आपका बेटा स्कूल नहीं आ रहा है, उसको कल स्कूल भेजिए। और उन्होंने वो रिजल्ट चेंज करके दिया कि आज भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनसे अच्छा रिजल्ट अभी तक किसी ने नहीं दिया। उस समय पे एक बिलीव होता था कि फर्स्ट क्लास कैसे आएगी, यूपी बोर्ड में फर्स्ट क्लास कैसे आएगी, एंड ही हैज गिवन द 29-30 फर्स्ट क्लास दैट टाइम, एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज एंड रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन फॉर हिम। और वो स्कूल के अंदर रह के सुबह 7 बजे से लेके और रात को 7 बजे तक स्कूल के अंदर, और वो रिजल्ट का चेंजेस करके दिया उन्होंने इस टाइम में। वो डिसिप्लिन बनाया कि कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं पर रास्ते में भी चल रहा है एंड ही हैज लिसन कि प्रिंसिपल सर इज ऑन दैट वे, तो वो बहुत स्ट्रेट जाकर और बिल्कुल डिसिप्लिन होकर वो उस रास्ते में भी चलता था। ये उनका रेस्पेक्ट था या उनकी टीचिंग थी, वो दोनों उनको रिकॉग्नाइज करता था। और मेरे लिए बेस्ट इंस्पिरेशन माय प्रिंसिपल सर आरपी शर्मा सर। हमारे पास ऐसे लिविंग लेजेंड्स हैं जिनके बारे में जब मतलब दे आर इंस्पिरेशन देमसेल्व्स। जब ऐसे मेंटर्स हैं हमारे साथ में, तो वी नो कि कुछ गलत भी हो गया तो सर हैं, सर से गाइडेंस लेके वी कैन ऑलवेज गो अहेड एंड करेक्ट इट। Absolutely. Sir, it's great to know about such an amazing principle. When he used to come in the class, he said only one thing, कि आपको जो भी करना है वो टॉप पे करिए, आपको जो भी बनना है, ठीक है, वो टॉप पे जाइए, बॉटम में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा टीचर ही बनना है या आपको जॉब ही करनी है, नहीं, उन्होंने कभी भी किसी प्रोफेशन को टारगेट नहीं किया या किसी प्रोफेशन को गाइड नहीं किया, ठीक है। उनका सीधा सा एक ही स्टेटमेंट करना था कि आपको जो भी करना है वो आप टॉप पे करिए, आपको जो भी बनना है वो टॉप पे बनिएगा। वो हमेशा स्टूडेंट को केवल यही चीज इंस्पिरेशन करने के लिए आते थे कि आपको जो भी करना है वो टॉप पे करिए। Wonderful thought, do your best and give your best and aspire to be the best.
So a beautiful philosophy by sir, and we are truly blessed to know about such a wonderful principal out there, and we look forward to have him soon on Great Principles also. We'll love to hear about his journey, sir. Sure, I will speak to him. Yeah. So on this note, we reach to the very interesting segment of the show. This is called rapid fire round. So you have to answer in one word or a statement. Statement will be. Here goes the first question. What are your hobbies? What you do in your recreational time? Internet surfing, and I just look the other schools what they are doing, what is the in competition. All right, tell us about a funny or a weird incident in your life. Weird incident, I will not say anything. हाँ, कई बार ऐसा होता था कि actually what I do, I used to run the classes from morning 9 to 9 during the board examination. वो 12 आवर्स की जो बच्चों के साथ में जितनी भी गॉसिपिंग होती है, वो 1 आवर हम जो उनका रिलैक्सिंग टाइम होता है, उस समय पे जितनी भी चीजें शेयर होती थी, और कई बार ऐसा होता था, 99% ऐसा होता है कि उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपकी मिमिक्री करते हैं. दे वांट टू द प्रिंसिपल. और एक नर्सरी का बच्चा था जो फनी और वियर्ड दोनों एक साथ हुआ है. एक पेरेंट आए मेरे पास, एट दैट टाइम आई वाज इन गुजरात, कि सर मेरा बच्चा रोज जाकर बिस्तर पे खड़ा होता है और पॉकेट में अपनी एक साइड पॉकेट में हाथ डालेगा और तब वो ऐसे करके अनाउंसमेंट स्टार्ट करता है. ठीक है, आपने जो भी अनाउंसमेंट किया होगा आज, या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, वो जाके मुझे डेली उस पे बेड पे खड़े होके और पॉकेट में हाथ डाल के, दैट टाइम आई रिकॉग्नाइज कि मैं कैसे चलता हूँ या मैं कैसे हमेशा खड़ा होता हूँ. ये मुझे उस बच्चे ने उस समय पे बताया कि मैं पॉकेट में हाथ डाल के अक्सर जब भी अनाउंस करता हूँ तो मेरा पॉकेट में, साइड पॉकेट में मेरा हाथ होता है. That time I recognize. It was funny for me and weird too. यहाँ बच्चे भी इतनी छोटी सी चीज भी नोटिस करते हैं. Absolutely, children are great observer and they learn by observing a lot. So yes, this was actually a very funny incident, and these are the memories which we have. That acha, okay, do I do like this? Then we also hit on this. I put my hand in the side pocket. All right, so this is something I need to notice again. So wonderful to know about this incident. Coming to the next question, sir, who is your favorite actor and movie? हाँ, Amitabh Bachchan ji is the best actor. Or हाँ, I will say the movie is Sarkar is. Sarkar, all right. So your interest is there in organizing events during festivals. So which is your favorite festival? Festival, actually every event I just make in a festival. Actually, I organize the CBSE National Taekwondo Championship in my school. Actually, Balrampur is a rural belt. It's also come in an aspirational district. It's in backward area. It's on 254 number. So that was a very tough task to organize this event for the 5,000 and plus 16 international students in the city. वो एक अपने आप में टफ जॉब था, लेकिन हाँ, उसको एक पूरा फेस्टिवल्स की तरह से एक पूरी जो एक आपका सेकंड उसमें था कि टीम वर्क, उस टीम ने बहुत अच्छे से काम करके मेरे साथ में हर एक इंस्ट्रक्शन को एक इंडिकेशन मिलता था एंड दे डू द जॉब. वो एक पूरा फेस्टिवल मेरे लिए बेस्ट फेस्टिवल, और जितने भी गेम्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो फेस्टिवल्स की इससे कम नहीं होते हैं. Wonderful. So you create every sports as a festival and you celebrate it in that manner. Yeah, absolutely. Great. So are you a tea or coffee person? Tea. Tea person. If you were given a chance to ask 3 wishes from the genie of Aladdin's lamp, what would be those 3 wishes? First, the education minister. I would like to change the complete reform the system. All right. Okay. And the second, a wonderful atmosphere of the institution. And third, all my luxuries should be fulfilled. Wonderful. Very honest answer, sir. I really appreciate the honesty here. You know, it actually came from the heart. These are my 3 wishes. This is all I want. Wonderful. Great. So it was very interesting to know you in this segment. Now we come to the last question of the show, which is called Viewer's Choice Question. So my viewer says that children look up to adults in their lives for their role models, family, relatives, acquaintances, celebrities, and social personalities from various vocations motivate and lead youngsters. What qualities should children look for in their role models? See, everything is depend upon the culture. आप उस स्टूडेंट को, आप अपने चाइल्ड को किस कैरियर में, किस जगह पर आप दिखाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. आई विल से सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमेजिनेशन. अगर उस इमेजिनेशन को डेवलप करना सबसे टफ जॉब है.
आइंस्टीन ने कहा है इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। आइंस्टीन ने इस चीज को कहा है, अगर हम उन बच्चों के अंदर वो इमेजिनेशन डेवलप कर पाते हैं, हम तो ऑटोमेटिक दे विल मूव टुवर्ड्स द नॉलेज, दे विल ट्राई टू फाइंड इट। ठीक है, मैंने जितनी बार भी मैं अगर अपने बच्चों से बात करता हूँ क्लासरूम में, तो हमेशा अमिताभ जी हो, चाहे सचिन हो, ठीक है, चाहे आज की तारीख में अब्दुल कलाम हो, ठीक है, ये तीन अपने आप में एक ऐसी इंस्पिरेशन है, ऐसे रोल मॉडल हैं कि अगर हम इनकी 1% भी फिलॉसफी पे अगर इनके फंक्शन उस पे काम करें, तो शायद हम अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर एक फेलियर का सामना करना पड़ा है। उनके पास वो नहीं था जो उनको चाहिए था, उसके बावजूद दे हैव डेवलप्ड दैट स्किल टू अचीव देयर गोल्स, देयर टारगेट। तो वही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली लेबरस हैं, आप उसके फेवर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली उसको पाने की कोशिश में हैं, तो डेफिनेटली वो एक दिन आपको मिलेगा। वेरी वेल सेड सर, क्योंकि अभी हम जब इंडस्ट्री पैटर्न देख रहे हैं, आज का जॉब पैटर्न देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे रिसोर्सेस को ढूंढना जो कंसिस्टेंटली रिपीटेटिवली एक ही काम बार बार हर रोज कर सके। सो यस, सो दैट इज देयर दैट वी मस्ट गो ऑन, हमें काम करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी शुड लुक अपॉन, आवर चिल्ड्रन शुड लुक अपॉन दैट हाउ। आजकल के बच्चे बहुत अटेंशन स्पैन, इंटरेस्ट बहुत छोटा होता है, इमीडिएटली स्विच कर। Absolutely. So very well said, sir, that these models, role models, aspire them that how they should continuously focus on, they be focused and keep working. Right. So it was a great, insightful session, sir. We thoroughly enjoyed each and every answers of yours, and it was a very, very insightful and meaningful session, sir. Thank you so much for your time with us. We are Thank you very much. Thank you for giving the time, and thank you for sharing my views. Thank you very much.